नमो सिद्धानम। सभी को मेरा प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी को जैन हेरिटेज सेंटर्स .com की जैन हेरिटेज सीरीज जैन परंपरा श्रृंखला में स्वागत है। मेरा नाम गौरव जैन है। हम अगले कुछ समय तक जैन भाषा, विज्ञान, साहित्य, मंदिर पद्धतियां, पुरातत्व के अनेक विषयों पर इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सभी स्पीकर्स, प्रेजेंटर्स, वक्ता इन विषयों में दशकों का अनुभव रखते हैं। आज के विषय जैन कला एवं परंपरा में सरस्वती तथा जैन धर्म में शुद्ध पंचमी और जिनवानी सरस्वती के हमारे आज के वक्ता डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा जी और अमन जैन शास्त्री जी का प्रणाम पूर्वक स्वागत करता हूँ। अमन जी भी थोड़े समय में हमें ज्वाइन करेंगे। हम इस श्रृंखला हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, अन्य भारतीय भाषाओं में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे अधिक से अधिक वक्ताओं को हमें सुनने का अनुभव प्राप्त हो तथा हम ज्ञान अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचा सके। आज का व्याख्यान हिंदी में होगा, पर आप किसी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। मैं सभी श्रोताओं से स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपना माइक बंद रखें, म्यूट पर रखें तथा अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखें। हम दोनों ही सेशंस के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और दोनों ही व्याख्यानों के बाद इसके लिए समय दिया जाएगा। मैं आज की प्रस्तावना और मंगलाचरण के लिए नितिन एचपी जी को आमंत्रित करता हूँ। नितिन जी जैन हेरिटेज सेंटर्स के फाउंडर हैं। में प्रयासरत हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। इस जैन परंपरा श्रृंखला के पीछे के प्रेरणा स्रोत यही है। उनसे अनुग्रह है कि अपनी भावना को व्यक्त करें। नितिन जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ .com 2002ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಕಗಿರಿಯ ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಂತಹ MD ವಸಂತರಾಜರವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಂದಿನಿಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ ಒಂದೇನೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು, ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಾದ ಜರ್ಮನಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನರು ಜೈನೇತರರು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡೇತರರು, ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯೇತರರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಕೂಡ, ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಕೂಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಡಕಾಗೋದು, ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡದವರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆ, ಭಟ್ಟಾರಕರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಮಾಲಿಕೆ, ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಮಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್, ಜೈನ್ ಪರಂಪರಾ ಶೃಂಖಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಥವಾ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳು ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ ಸೇರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏನು ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Jai Jinendra friends, Jain Heritage Centers was founded in 2002 on May 26th in the presence of His Holiness Swasti Shri Bhunakirti Bhattaraka Swamiji of Kanakagiri Jain Math, and it was inaugurated by Professor M.D. Vasantaraj, one of the greatest Jain scholars and a Prakrit scholar who was revered all world over. Since 2002, we have been working on and off on many projects, initiatives, and also movements related to Jainism. And at the end of the day, it was all focused about bringing Jainism and Jain heritage to the light. When we were working across these years, what we have found is, we have found Jains, non-Jains, Kannadigas, non-Kannadigas, North Indians, South Indians, West Indians, Eastern Indians, Indians, foreigners, people across the world have worked across Jainism over the centuries, and they have been working. And we have also seen youngsters and aged people and people across all age groups being working on multiple initiatives. When all this is happening, what we felt was somewhere the research work, particularly the heritage work, the archaeological work, the inscriptional research work, somewhere they're not getting projected because of various reasons, maybe because of language barrier, or maybe because of regional barrier, or many other reasons. So that is when we thought we should find a program which will be a common platform for people of all ages, all regions, all countries, and all languages, and all religions. End of the day, the objective is only Jainism, Jain heritage, and Jain archaeology, and Jain philosophy, but particularly main focus on Jain heritage and archaeology. That is when we thought we should start a series, something like that. That is how we started with Jain Heritage series. In Jain Heritage series, we'll be focusing mainly on the Jain heritage, archaeology, and inscriptions and temples and idols. At the same time, whenever philosophy matters, for example, today's topic, we know Jinavani Saraswati, the Shruta Panchami, the Shruta Skanda, and all the concepts are there. When that is required, we will bring in the philosophical angle plus the archaeological angle to it. So that's how we have started with this. With this, today is the launch of the first of its webinar series as part of the Jain Heritage series on Jinavani Saraswati, Shruta Skanda, Jinavani Saraswati, and its importance in Jainism with a philosophical as well as an archaeological background. With this, we are starting off with our Jain Heritage series. Thank you all for being a part of this initiative. We look forward for all your feedbacks, support, all throughout the ages, all throughout the years as we move ahead. Thank you. Jai Jinendra. Over to you, Gaurav ji. अब हम अपने आज के दूसरे विषय की तरफ चलते हैं. अमन जी ने हमें थोड़े समय पहले ज्वाइन किया. आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन शास्त्री जी. हम आज का विषय, दूसरा विषय हमारा है जैन धर्म में शुद्ध पंचमी और जिनवानी सरस्वती. इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अमन जैन शास्त्री जी हमारे साथ हैं. अमन जी का बहुत अनुग्रह है कि उन्होंने हमारे आज के विषय पर अपना समय देने की अनुमति दी. अमन अशोकनगर मध्य प्रदेश भारत से है और जैन धर्म का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन कार्य आचार्य विद्यासागर जी तथा मुनि सुधा सागर जी के मार्गदर्शन करते हैं. इन्हें मात्र 22 वर्ष की आयु में शास्त्री की पदवी मिली थी, प्रदान की. जैन धर्म के अनेक विषयों तथा सभी चारों अनुयोगों पर इनका काफी अच्छा पकड़ है और
डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर अपना अपना रिसर्च अनुसंधान करते रहते हैं। तो अमन जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, आप स्टार्ट करें। जय जिनेन्द्र। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और यहाँ पे आमंत्रित किया। तो मेरा विषय जैसा कि आपने बताया है शुद्ध पंचमी जैन धर्म में, और साथ ही साथ जिनवाणी सरस्वती, इस बात को लेकर के आज अपन बात करते हैं। सिन्हा जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपना विवेचन दिया सरस्वती जी को लेके, सरस्वती की मूर्ति को लेके। शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, आप क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बिना समय गवाए शुरू करता हूँ, क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है और इसके बाद शायद मुझे भी कहीं जाना है, तो समय फिलहाल तो कम है, आगे फिर कभी ज्यादा देख लेंगे। तो सीधी सी कहानी है। हम लोग काफी वर्षों से, जब से हमारा शायद जन्म हुआ है, जन्म से जब हमारे माता पिता पढ़ाते आते थे अश्रुत पंचमी अश्रुत पंचमी है, थोड़े और बड़े हुए, थोड़ा और आगे बढ़े तो और बताया गया कि श्रुत पंचमी क्या होती है, जिनवाणी का और महत्व समझा गया। थोड़ी और आगे बढ़े तो थोड़ी और महत्वता दर्शाई गई कि इस दिन क्या करें हम, तो इस दिन जिनवाणी को सजाइए, जिनवाणी को सुंदर कीजिए, जो जिनवाणी हमारी खोई हुई है या जो खो चुकी है अब आगे वैसा ना हो, उस अनुरूप कार्य कीजिए। तो सबसे पहली बात, शुद्ध पंचमी पर्व की कथा तो हम सभी को पता है कि शुद्ध पंचमी पर्व कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। मैं अपनी बात को आज ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा, क्योंकि समय मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे पास भी आज इतना नहीं है, किसी कारण से। ये पहले, क्योंकि ये जो वेबिनार होना था वो कुछ और डेट पर होना था, और आज की जो डेट है वो कोई और डेट है शायद, जो पहले मुझे बताया गया था, इसलिए तो एक कहानी तो बहुत छोटी सी है कि सबसे पहले अपन ये चलते हैं इस वाक्य की ओर, इस शब्द की ओर जिसका नाम है श्रुत। क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो बात शुरू, वो बात प्रारंभ ही श्रुत इस शब्द से होती है। श्रुत देवता हो, सरस्वती देवी हो, श्रुत देवी हो, ये सारे शब्द आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो श्रुत शब्द आया कहाँ से, या श्रुत का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ, इस बात की ओर थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि जिनवाणी हो, सरस्वती हो, श्रुत हो, इस सबका जन्म या इस सब की कहानी शुरू होती है हमारे तीर्थंकरों से। चाहे वो आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर स्वामी हो, पहले से लेकर के 24 तीर्थंकर, सारे के सारे तीर्थंकरों ने ही सबसे पहले श्रुत का वखान करा था। अब श्रुत कहते किसे हैं? देखिए, नाम से स्पष्ट है श्रुत। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप ध्यान से समझ लीजिए कि श्रुत में और श्रुत देवता में और सरस्वती देवी में कितना अंतर है। हम नाम तो ले रहे हैं सरस्वती, जब वाणी में पूजा करते हैं तब भी बोलते हैं कि सरस्वती पूजन निकाल लो, लेकिन वास्तविकता में वो सरस्वती का स्वरूप क्या है, या वो सरस्वती कैसी थी, अब कैसी हो गई, और थोड़ी और समय पश्चात शायद वो कैसी हो सकती है, इसलिए मैं ये शब्द बार बार दोहरा रहा हूं। देखिए, एक शब्द है श्रुत। श्रुत, ये शब्द ही दर्शाता है श्रूयते इति श्रुतम, जिसे सुना जाए वो श्रुत है। फिर दोबारा ध्यान से बोल रहा हूं, श्रुत का मतलब होता है जिसे सुना जाए वह श्रुत है। अब ये सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई, कब से प्रारंभ हुई, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर हुए उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले देशना समूह शरण में की थी। उसके पहले चूंकि हम सभी को पता है कि तीर्थंकर सिर्फ चौथे काल में होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का होता है।
भोग भूमि में ना धर्म होता है, ना जिनवाणी होती है, ना अधर्म होता है। भोग भूमि की एक विशेषता है कि वहां पे धर्म अधर्म ये सब कुछ नहीं होते। वहां पे जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बस भोग ही भोग है, उनको भोगते हैं। चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का आरंभ होता है। तीर्थंकर आते हैं, आते क्यों हैं? आते हैं हमें शिक्षा देने के लिए, आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, आते हैं हमें सच्चे मार्ग पर, सही मार्ग पर लाने के लिए। और वो तीर्थंकर भी अपने पूरे जीवन काल में उपदेश नहीं देते। मतलब जब वो राज्य अवस्था में थे, जब वो बाल्य अवस्था में थे, अन्य आदि अवस्थाओं में थे, उस समय तक भी उनका कोई विशेष वो नहीं था। हाँ, वो राजा रहे थे, राजा से संबंधित जो कार्य थे वो किया करते थे। आदिनाथ भगवान अगर हुए तो उनके पिता जो थे कुलकर आदि थे, उन्होंने व्यवस्था समझाई कि अब आप ऐसे ऐसे करिए। वो विषय में नहीं ले रहा हूँ, विषयांतर हो जाऊंगा। मेरा सिर्फ समझाने का आपको मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि तीर्थंकर ने सबसे पहले श्रुत का वाचन किया। अब उन्होंने क्या बोला, तो हमने उसी तत्वार्थ सूत्र से संबंधित अजित जी ने शायद एक प्रश्न भेजा था। उसी तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्यों की अनंत अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानते हैं, वे केवल ज्ञानी होते हैं। अब चूंकि उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान था, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट ज्ञान, ये भी अंतर समझना। ज्ञान दो तरह का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम सब क्या जान रहे हैं? जो हमने सुना है। इसको करेक्ट करना ध्यान से। हम सब क्या जान रहे हैं? जो हमने किसी और से सुना है, और सुना हुआ गलत हो सकता है, लेकिन जिसने डायरेक्ट देखा है, सामने जिसके वो घटना घटित हुई है, उसका ज्ञान गलत नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थंकरों के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अब जब वो समौ शरण में बैठे थे और समौ शरण में गणधर परमेष्टि आए और उसके बाद उनकी देशना हुई तीर्थंकरों की, तीर्थंकरों की जो देशना हुई वो हुई अनक्षरात्मक। ध्यान से समझना मेरी बात को। तीर्थंकरों की जो देशना थी वो थी अनक्षरात्मक। अगर आप लोग जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं या जिन पूजा करते हैं तो उसमें आता है ओमकार ध्वनि सार, ये पूजा में आता है। वास्तविकता में किसी भी तीर्थंकर की ध्वनि ओमकार में नहीं थी। ऐसा वर्णन पढ़ने को और सुनने को मिलता है कि जो तीर्थंकरों की वाणी गिरा करती थी, एक अंतर्मूर्त में पूरा द्वादशांग वाच दिया करते थे, एक अंतर्मूर्त में। और अगर उस वाणी को देखा जाए तो वास्तविकता में वो वाणी ऐसी थी जैसे बारिश के समय बादल गरजते हैं, उस प्रकार की ध्वनि उनकी थी। ओंकार ध्वनि सार। तो ये परंपरा पहले तीर्थंकर से चली आई। प्रथम तीर्थंकर ने उपदेश किया, उसके बाद दूसरे तीसरे, फिर 24 अंतिम अपने महावीर भगवान पे बात आ गई कि 24 में महावीर स्वामी हुए जिन्होंने उपदेश दिया। उन सबका उपदेश कैसा था? उनका उपदेश था अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक से मतलब मेरा समझ गए? किसी भाषा में नहीं, किसी लिपि में नहीं, किन्हीं शब्दों में उसे बांधा नहीं जा सकता। अब जो अनक्षरात्मक, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि एक कबूतर बोलते, कबूतर की ध्वनि क्या होती है? अपन बोलते हैं कबूतर कैसे बोलता है, तो हम जल्दी से बोल देते हैं गुटरगु, लेकिन क्या वास्तविकता में वो गुटरगु बोलता है? नहीं बोलता। एक स्वान है, स्वान कैसे बोलता है? हम बोलते हैं भौं भौं, लेकिन क्या वो भौं भौं बोल रहा है? नहीं, आप उसका शब्द नहीं पकड़ सकते। ये तो आपने अपने आप को समझने के लिए लिख लिया कि उसकी ध्वनि ऐसी है, उसका ये शब्द है, लेकिन उसका वास्तविकता में शब्द क्या है वो आप नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो अनक्षरात्मक है, उसका कोई अक्षर नहीं है। और ये अक्षर तो आज हमने डेवलप कर लिया अपने लिए, इसके पहले अक्षर हुआ भी नहीं करते थे। तो जो तीर्थंकर की वाणी थी वो थी अनक्षरात्मक महावीर स्वामी की। अब दूसरे नंबर पे वाणी आती है गणधर परमेष्टि की, जिन्होंने उस वाणी को सुना।
अब उन्होंने क्या करा, हम पढ़ते हैं गणधरों ने गूथी अर्थात लिखी। सुन लीजिए, गणधर कभी भी लिखते नहीं है, ये किसी के मन में होगा, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि गणधर परमेष्ठी कभी भी लिखते नहीं है। खुद सोचो ना, समूह शरण में बैठे हैं, वहां पे कागज पेंसिल ढूंढेंगे? तो गणधर परमेष्ठी ने उसको सुना और सुन करके ग्रहण करा और उसको अक्षरात्मक ट्रांसलेट करा, जिसको हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति समझ सके। तो अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने उस वाणी को सुन लिया, तीर्थंकरों ने जो बोला था उसको समझ लिया। गणधरों की इसलिए आवश्यकता होती है, हम बोलते हैं ना महावीर भगवान की 66 दिन तक वाणी नहीं गिरी क्योंकि गणधर नहीं थे। वाणी इसलिए नहीं गिरी क्योंकि समझने वाला नहीं था। अब गणधरों ने वो वाणी को समझा, वाणी को अपना लिया, समझ लिया, उनको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको वो श्रुत प्राप्त हो गया, श्रुत ज्ञान प्राप्त हो गया। गणधर परमेष्ठी ने उस ज्ञान को और आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? बोल करके। तो उसके बाद के जो, मान लीजिए महावीर भगवान से अगर अपन शुरू करें, तो महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी। 12 वर्ष, 12 वर्ष और 38 वर्ष। तो अब अनुबद्ध केवली मतलब इनके पास वो ज्ञान ट्रांसलेट होता गया। सबसे पहले महावीर भगवान, उनसे गौतम गणधर ने सुना, उनसे सुधर्माचार्य ने सुना और उनसे जम्बू स्वामी जी ने सुना। ज्ञान की एक विशेषता होती है, हम ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, पर इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि आपको जितना ज्ञान है आप सामने वाले को उतना ज्ञान नहीं दे सकते। तो ये कम होता गया धीरे धीरे। उन 3 अनुबद्ध केवली के बाद 5 शुद्ध केवली हुए, उनके भी नाम आते हैं, नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। और इन 5 शुद्ध केवलियों का काल लगभग 1000 वर्ष रहा, 1000 वर्ष, 100 वर्ष। इन 5 शुद्ध केवलियों का काल लगभग 100 वर्ष रहा। यहां भी शब्द समझ लीजिए, श्रुत केवली। श्रुत केवली अर्थात जिन्हें श्रुत अर्थात द्वादशांग का ज्ञान था। कहीं पर भी सरस्वती शब्द नहीं आ रहा, श्रुत अर्थात द्वादशांग, बस। तो अब इन्हें द्वादशांग का ज्ञान था, ये 5 श्रुत केवली है। इसके बाद ज्ञान थोड़ा और कम हुआ क्योंकि आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि हम सामने वाले को उतना ही बता सकते हैं या उतना भी नहीं बता सकते जितना हमें आता है। ज्ञान और आगे बढ़ा तो इसके बाद 11 आचार्य, 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। 12 अंगों में 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं, पर 4 और कम हो गए, तो अब 11 अंग और 10 पूर्व बचे। तो 11 आचार्य ऐसे हो गए जिनका काल लगभग 183 वर्ष का था, 183। अब गाड़ी थोड़ी सी और आगे बढ़ी और 5 आचार्य ऐसे हुए जिनका जो सिर्फ और सिर्फ 11 अंग के धारी थे। ज्ञान और कम होता जा रहा है, ये देखते जाना, पहले जितना था उससे कम 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 होता जा रहा है। और अब उसके बाद 4 आचार्य ऐसे हुए जो सिर्फ एक पहले अंग आचार अंग के पाठी थे, धारी थे। ज्ञान और कम हो गया और इनका काल लगभग 118 वर्ष, ऐसे कुल मिला के लगभग 683 वर्ष व्यतीत हो गए। और जो 683 वर्ष में ही महावीर भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसका 0.1% भी हमारे पास नहीं बचा। अब बोलते हैं कि समस्त अंगों और पूर्वों का एक देश जो ज्ञान था वो आचार्य धरसेन स्वामी के पास था। कौन से आचार्य? आचार्य धरसेन।
जो अंग पूर्व का ज्ञान था उसका सिर्फ एक देश। अब सुनना ध्यान से, अभी तक जो परंपरा जो श्रृंखला आ रही थी वो बात से बात की ओर आ रही थी। मतलब मुंह से बोला आपने सुना, मुंह से बोला आपने सुना, आपने बोला उसने सुना, उसने बोला उसने सुना, उसने बोला उसने सुना। अब आचार्य धर्मसेन को ये चिंता हुई कि अगर इसी तरह ज्ञान बट सिर्फ मुंह की बात रह जाएगी तो ये तो खत्म हो जाएगा और बचेगा ही नहीं। तब उन्होंने विचार करा कि अब इसे लिपिबद्ध करना आवश्यक है। उसका कारण क्या था कि हमने अकलंक और निकलंक का नाम सुना है, क्योंकि पहले के जितने भी लोग थे उनका क्षयोपशम, उनका ज्ञान इतना तेज होता था, जिसे हम सामान्य भाषा में बुद्धि बोलते हैं, वो इतनी तीक्ष्ण हुआ करती थी कि वो जो एक बार सुन लेते थे वो उन्हें याद हो जाता था। पर जब जैसे जैसे ज्ञान कम हो रहा है, क्षयोपशम कम हो रहा है, तब आचार्य धर्मसेन को ये चिंता हुई कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब उन्होंने दक्षिण में एक कहीं महिमा महिमा नगरी थी, सतारा, वर्तमान में महाराष्ट्र। सतारा नगरी है जिसका नाम पहले था महिमा नगरी। वहां पे आचार्यों का सम्मेलन चल रहा था, अरहत बलि आचार्य थे। उन्होंने वहां पे संदेशा भेजा कि मुझे आपके 2 सुयोग्य शिष्य चाहिए, जो बुद्धि में, विनम्रता में सबसे तीक्ष्ण हो, सबसे तेज हो। तो अब कहानी शुरू होती है श्रुत पंचमी की, कि वहां पे जब बुलावा भेजा, अब मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा जल्दी, कि वहां पे बुलावा भेजा उन्होंने, चूंकि आचार्य धड़सेन ने बुलाया था, तो शीघ्र अतिशीघ्र 2 शिष्य वहां से रवाना करे, जो अत्यंत विनम्र थे, कुशल थे, बुद्धिमान थे। यहाँ पे वो पहुंचने वाले थे उसी रात्रि को। आचार्य धड़सेन स्वामी, जो कि गिरनार पर्वत में थे, ऊर्जयंत गिरी, उनके पास रात को स्वप्न आया कि 2 सफेद बैल उनके सामने आ रहे हैं। और जैसी उनकी आंख खुली तो उनके मुंह से निकला, जयदु श्रुत देवता, जयदु श्रुत देवता। और वो समझ गए कि ये शुभ संकेत है, जो 2 शिष्य मैंने वहां से मांगे थे वो यहाँ आने वाले हैं। और जैसे ही आंख खुली, सुबह देखा तो सामने से 2 अत्यंत कुशल, दिखने में भी जो काफी आकर्षक थे, 2 शिष्य, 2 मुनिराज वहां से चले आ रहे थे। इन्होंने तुरंत उनकी परीक्षा के लिए शीघ्र 2 मंत्र दिए। मंत्रों का इन्हें ज्ञान था, इनके द्वारा मंत्र शास्त्र भी लिखा गया है। इन्होंने मंत्र दिए और उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए दोनों को दे दिया। दोनों मुनिराजों ने तपस्या करी, 2 दिन का उपवास के साथ मंत्र साधना करी। मंत्र की सिद्धि तो हो गई, पर हुआ यूं कि वो मंत्र में एक अक्षर कम था और एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, जिसके कारण उसका प्रभाव क्या हुआ कि विद्या तो सिद्ध हुई, पर एक की जो देवी आई वो एक आंख से अंधी थी, और एक की जो देवी सिद्ध हुई वो दांतों से बाहर थे। तो जब उन्होंने ये देखा, ये उदाहरण चेंज भी हो सकता है, शब्द चेंज हो सकते हैं, कोई बोलेगा आंख की जगह ये था, कोई बोलेगा दांत की जगह वो था। मुख्य विषय हमारा वो नहीं है, मुख्य विषय ये है कि देवी सिद्ध हुई, विद्या सिद्ध हुई, पर विद्या जो सामने देवी का स्वरूप आया, देवता का स्वरूप आया, वो सुंदर नहीं था। और इन्हें पता था कि देवता तो सुंदर होते हैं, सर्वांग सुंदर होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस मंत्र में जरूर कोई ना कोई गलती है, और चतुर तो ये थे ही। तो फिर इन्होंने उस मंत्र को सुधार करा, जिसमें अक्षर न्यून था उस अक्षर को ठीक करा, जिसमें अधिक था उस अक्षर को हटाया। और अब जो देवी देवता जो विद्या सिद्ध हुई, वो सर्वांग सुंदर देवी इनके सामने आके खड़ी हो गई। और अब चूंकि दोनों को 2 विद्याएं सिद्ध हो चुकी थी, तो पहली जिसको सिद्ध हुई, उन्होंने बादे घोष आदि बजा करके इनका खूब यशोगान करा, तो इसलिए इनका नाम भूत बलि ऐसा पड़ गया। और दूसरी जो देवी सिद्ध हुई
उन्होंने दूसरे मुनिराज जिनके दांत ठीक नहीं थे, आड़े टेढ़े थे, ऊपर नीचे थे, उनके सारे दांतों को सुंदर पुष्प के समान कर दिया, इसलिए इनका नाम पुष्प दंत पड़ा, दोनों मुनिराजों का। और जब ये दोनों उनको लेकर के आए कि देखिए आपने गुरु के पास, अपने आचार्य के पास, कि हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से ये विद्या हमें सिद्ध हो गई है, अब आप आगे कार्य बताएं। तब मुनिराज ने इनको योग्य समझा कि हाँ, ये मेरी विद्या पाने के योग्य हैं, और उन्हें शिष्य स्वीकार करके उनको अपना ज्ञान दिया। ज्ञान अर्जन कर लिया। ज्ञान अर्जन के पश्चात चातुर्मास का समय निकट था, और गुरु ने इनको आदेश दे दिया कि अब आप जाइए, बिहार कीजिए, अब आप यहां मत रुकिए। तो दोनों मुनिराजों को बिहार के लिए भेज दिया, और स्वयं वहीं पर सल्लेखना समाधि लेकर के बैठ गए। चंद्रगिरी शायद नाम है उस पहाड़ी का, उस गुफा का, जहां पे आचार्य धर सिंह स्वामी की समाधि हुई है। अब वो दोनों मुनिराज अपने अपने गंतव्य स्थान पर निकल गए। दोनों अलग अलग जगह निकले, एक साथ नहीं, और दोनों ने अपने अपने अनुसार ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आचार्य भूतवली स्वामी ने ग्रंथ की रचना शुरू करी, और उनका यह आशय था कि इस ग्रंथ को 6 भागों में विभाजित करा जाए, जिसमें से कुछ सूत्र तो उन्होंने उस ग्रंथ के लिख के दे दिए, पर कुछ सूत्रों के बारे में कि अब ये आगे पुष्पदंत स्वामी पूरा करेंगे। तो अपना ग्रंथ लिख के और आगे पुष्पदंत महाराज को भेज दिया, और वहां संदेशा भेजा कि अब आप इस ग्रंथ को पूरा कीजिए। तो फिर आगे चल के आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने उस पूरे ग्रंथ के 6 भाग, वो पूरा ग्रंथ 6 भागों में है, 6 खंडों में है, उस ग्रंथ को पूरा करा, जिसमें लगभग 36,737 सूत्र हैं। 36,737 उस ग्रंथ को पूरा करा। और जिस दिन वो ग्रंथ पूरा हुआ था, अब अपनी मूल बात आ गई कि जिस दिन वो ग्रंथ पूरा हुआ था, उस दिन उस ग्रंथ की अर्चना हुई, उस ग्रंथ की पूजा हुई, क्योंकि पहला ऐसा ग्रंथ था जो जैन धर्म का ग्रंथ था, जैन मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। इसके पहले ग्रंथ परंपरा हमारी परंपराओं में, हमारे में नहीं थी, लिखने की कोई पद्धति नहीं थी। और जिस दिन वो पूरा हुआ, उस दिन जेठ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, इसलिए आज उस पंचमी को हम लोग श्रुत पंचमी इस नाम से मनाते हैं। तो ये थी कहानी श्रुत पंचमी की, कि वो ग्रंथ इस दिन पूरा हुआ, इसलिए उसको आज हम श्रुत पंचमी के रूप में बनाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सरस्वती की ओर, जो आजकल उस श्रुत को उस देवी के रूप माध्यम से, देवी के रूप में जोड़ा जाने लगा है। वास्तविकता में जैन धर्म में, जैन परंपरा में श्रुत देवता, जिनवाणी, सरस्वती, ये सिर्फ एक पर्यायवाची नाम थे, ये कोई देवी विशेष नहीं थी। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक नाम थे, ये कोई देवी विशेष नहीं थे। अजित जी अजित जी, अजित कुमार जी बेनाडी, जर्मनी से, शायद इनका ही प्रश्न था तत्वार्थ सूत्र से संबंधित। तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में 19 या 17वें नंबर के सूत्र में इन्होंने बताया था कि श्री रीत गति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थितया सामानिक पारिशत्ता, वो वाला जो सूत्र आता है। अजित जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपके जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि ये जो देवियां हैं, ये किसी बुद्धि से, ये किसी विकास से या किसी एक वस्तु से संबंध नहीं रखती, ये सिर्फ वहां पर निवास करती हैं। वो सरोवर, वो तालाब कितना महत्वकारी है, अतिशयकारी है, या उस तालाब की महिमा दर्शाने के लिए इन देवियों का वर्णन वहां पे करा है कि वहां पे वो कमल है, और उन कमलों में, उन सरोवरों में देवी वहां पे निवास करती हैं। इनका किसी
बुद्धि से, किसी विवेक से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ नाम है उन देवियों के। तो वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि सरस्वती देवी, ये जिनवाणी को बोलना तो ठीक है, लेकिन किसी मूर्ति को बना करके सरस्वती पूजना ये ठीक नहीं है। ये परंपरा कब से चली मूर्ति बनाने की, या मूर्ति आदि का एक आकार देने की? तो ये शुरू इसलिए हुआ, वास्तविकता तो ऐसे देखने में आती है कि हो सकता है जो अन्य मतावलंबी हैं उन्होंने सरस्वती का स्वरूप हमसे लिया हो। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। या ये भी हो सकता है कि जब ये जिनवाणी का, सरस्वती का प्रचलन चल पड़ा, तब हमारे आचार्यों ने उसको एक रूप देने की कोशिश करी। उस रूप को देने के लिए उन्होंने उसे बताया चार युगों को चार भुजा के रूप में, या भी जैसे सिन्हा जी बता रहे थे कि 16 भुजा हैं तो 16 महाविद्याओं के सहित हैं। तो ये तो हमारी जिनवाणी के ही अंग हैं, ये तो हमारे शास्त्रों की बातें हैं। अब चाहे उसे 16 हाथ दे दो, चाहे 4 हाथ दे दो, चाहे 40 हाथ दे दो, कल के दिन कोई 64 रिद्धि के नाम से 64 हाथों की मूर्ति बना देगा। परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रुत देवता या जिनवाणी, ये जिनवाणी के रूप में ही इसे पूजो, इसे किसी मूर्ति या आकार के रूप में मत। तो फिर इसकी मूर्ति क्यों बनने लग गई, कैसे बनाया क्यों गया? इसकी बहुत अच्छी व्याख्या है। खैर, जिन वर्ण मोसह मैडम करके गाथा आती है, और भी बहुत सारी गाथाएं जिनमें बताया है कि ये कोई मूर्ति आदि नहीं है, ये तो सिर्फ एक अश्रुत है, बोलने वाली बात है, जिनवाणी है। इसको ऐसे जरूर समझ सकते हैं जैसे आज हम बोलते हैं भारत माता की जय। हम स्कूलों में शुरू से रहे हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, स्कूल में यही सुनते आए हैं, भारत माता की जय। बोलते भी थे, नारे लगाते थे, आज भी लगाते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त आ जाए तो अभी भी लगाएंगे। साथ ही साथ उस भारत माता को जब एक चित्र में दर्शाया जाता है तो उसे कैसे दर्शाया जाता है? साड़ी पहने एक देवी, जिसके पीछे सिंह है, जिसके हाथ में त्रिशूल है, तो उसकी एक कल्पना करी जाती है कि ये इस प्रकार से भारत माता है। पर वास्तविकता में भारत माता का कोई स्वरूप ना तो हिंदू ग्रंथों में है, ना जैन ग्रंथों में है। भारत माता है ये कहीं नहीं लिखा कि कोई देवी है, पर उसको एक आकार दे दिया हमें दर्शाने के लिए, हमें समझाने के लिए, साथ ही साथ हमारी उस पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए कि हमारी उससे श्रद्धा कैसे जुड़े, हम उससे और ज्यादा अटैच कैसे हैं। तो उसे एक आकार दे दिया गया, क्योंकि बिना आकार के किसी को समझना और परखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी तरह सरस्वती को एक आकार दे दिया गया कि इसको ऐसे समझ लीजिए, पर वास्तविकता में ये कोई देवी नहीं है। और ना, और सुन लीजिए, अब और आगे चल रहा हूं, एक भी ग्रंथ में, एक भी शास्त्र में, प्राकृत के, संस्कृत के, अपभ्रंश के, हिंदी के, कन्नड़ के, तमिल के, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सरस्वती से संबंधित, सरस्वती की मूर्ति से संबंधित पूजा लिखी हो। मूर्तियां मिल जाएंगी, पर मूर्तियां मिलने से आप ये प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि सरस्वती की पूजा होती थी। आप दोबारा ध्यान से समझना, पुरातत्व वाले अगर मेरी कोई बात सुन रहे होंगे तो हो सकता है उन्हें थोड़ा सा कड़ा लगूं मैं। देखिए क्या होता है कि पुरातत्व वालों के लिए तो पुरानी जो भी वस्तु मिलती है, पुराना, मैं तो मूर्ति की बात कर रहा हूं, आपके लिए तो पुराना पत्थर मिलता है वो भी महत्वपूर्ण है। गलत तो नहीं बोल रहा? अगर कोई प्राचीन पत्थर भी आए
तो आपके लिए तो वो भी महत्वपूर्ण और काफी महत्वता रखता है। उसी तरह कि कुछ मूर्तियां बहुत, देखो आपकी बात से आपकी सिद्ध करता हूं कि आज अगर सेना जी भी बता रहे थे कि ये मूर्तियां सरस्वती की मिली हैं, तो सरस्वती की कितनी मूर्तियां मिली, चाहे देवगढ़ हो, चाहे लाडनू हो, चाहे बात अभी चल रही थी, टोटल कितनी मूर्तियां आज तक मिली होंगी? 10, 200, 500? कितनी भी नहीं मिली। इसका मतलब ये मूर्ति काफी रेयर थी, काफी कम मात्रा में मिली, अधिक संख्या में नहीं मिली। जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां तो लाखों और करोड़ों की संख्याओं में आज भी उपलब्ध है, पहले भी रहेंगी। तो पहली चीज तो यही दर्शा रही कि उस समय भी सरस्वती पूजा का कोई प्रचलन नहीं था, मूर्ति पूजा का या देवी मान करके। जिनवाणी तो तब भी पूछती थी, आज भी पूछती, आगे भी पूछेगी। यही सरस्वती में हाथ में लिया है। किसी मूर्ति को बना करके, एक आकार दे करके या एक कोई देवी मान करके पूजना, इसका विरोध मैं करता हूं। कि पहले कि आपकी कम होना, 4, 5, 10 की संख्या में होना ही बता रहा है कि प्रचलन तब भी नहीं था, तो आज क्यों बढ़ रहा है। दूसरी बात, मैं एक और तथ्य आप सभी के सामने रख रहा हूं। कई सारे जैन प्रतिष्ठा ग्रंथ मिलते हैं, ध्यान से सुन। हमारे कई सारे जैन प्रतिष्ठा ग्रंथ मिलते हैं जिनमें जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा का वर्णन आता है। हमारे आचार्यों को दीक्षा पत्र आदि होते हैं जिनमें आचार्यों को दीक्षाएं आदि दी जाती हैं। आदि में हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं। एक भी प्रतिष्ठा ग्रंथ ऐसा नहीं है, एक भी प्रतिष्ठा पाठ ऐसा नहीं है जिसमें सरस्वती देवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा का। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सरस्वती की मूर्ति का वर्णन किसी भी प्रतिष्ठा ग्रंथों में नहीं मिलता। जबकि अन्य सभी तीर्थंकरों की, सीमंदर भगवान की, अन्य सामान्य केवलियों की, भगवंतों की, सिद्धों की, सबकी प्रतिष्ठाओं का, उनका स्वरूप, उनका प्रारूप कि कैसे प्रतिष्ठा करनी है, ये सब मिलता है। और को कैसे नापना है, उनका नाप क्या होगा, कहाँ से छोटी, कहाँ से बड़ी, कहाँ से कितनी, ये सब भी। लेकिन सरस्वती देवी करके, सरस्वती की मूर्ति करके ऐसा कोई भी वस्तु भी प्रतिष्ठा ग्रंथों में नहीं मिलता। तो मेरा आपसे कहना यही है, मैं बस अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी बात को विराम दूंगा। तो मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि जिनवाणी को जिनवाणी के रूप में पूजो, जिनवाणी की पूजा करो, लेकिन कोई देवी मान करके मत करो। ज्ञान के मुख से खिली है, यही जिनवाणी है और ये हमारे लिए पूज्य है, ये कोई। और अगर देवी की बात करते हो तो देखो, मैं एक पहलू और आपका छेड़ूंगा कि मान लेते हैं कि कोई देवी है, सरस्वती देवी है, इसका मतलब अजर अमर है कि नाशवान है? देवी देवताओं की आयु होती है कि अमर रहते हैं? अगर देवी है और देवता है तो आज आयु। को प्राप्त हो जाएंगे, गौरव जी। हाँ जी, आयु होती है, डिफाइंड। तो आदिनाथ भगवान के समय पे ये देवी थी कि नहीं थी? और आदिनाथ आदिनाथ भगवान से आज कितना समय? करोड़ों अरबों वर्ष, असंख्यात वर्ष, करोड़ों अरबों नहीं, असंख्यात वर्ष।
क्या की आयु इतनी होती है? अगर देवी मानोगे तो फिर इसे नाशवान भी माना, इसका अस्तित्व भी खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये भी मानना पड़ेगा। जैसे माना ना श्रुत पंचमी, कि आज के दिन ये ग्रंथ हमें प्राप्त। और भी सुन, श्रुत पंचमी ये नहीं है कि जिनवाणी का जन्म हुआ था। श्रुत पंचमी का मतलब सिर्फ इतना है कि इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था, इस ग्रंथ का जन्म हुआ था। जिनवाणी तो अनादिकाल से चली आ रही है, तीर्थंकरों की वाणी में फिर रही है। पर अगर इसे देवी मान लोगे तो आज नहीं तो कल इसका अंत भी पड़ेगा, क्योंकि देवी है तो मरेगी भी, मृत्यु को भी प्राप्त होगी। इसलिए मेरा आपसे कहना यही है कि बहुत अच्छी तरह से सेवा करें, जितना बन सके उतना करें। पर लास्ट में यही कहूंगा, तुम मान करके नहीं, जनवाणी मान करके। किसी आकार रूप में अगर पूजना है पूजो, और समस्या देखो वही आती है। फिर आपकी परंपरा में और हिंदुओं की परंपरा में अंतर क्या रहेगा? आज कई सारे हिंदू बोलने लग गए, बोले तुम जैन सनातन धर्म थोड़ी हो, सनातन तो हम हैं, तुमने सब कुछ हमसे लिया है। ये देखो, ये जिनवाणी सरस्वती तो हमारे में है, वो बता रहे हैं हमें, वो प्रमाण देते हैं कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में कहीं सरस्वती का वर्णन मूर्ति नहीं आती, हमारे ग्रंथों में आती है। तो इसको सिर्फ इतना समझें कि एक आकार इसे दिया गया ताकि लोग सकें, लोगों की श्रद्धा उस पर बढ़े। पर वास्तविकता में इसका आकार इसका नहीं है। ये तो जनवाणी थी, श्रुत थी, है और रहेगी। बस इतनी बात को बोलकर तो विराम दूंगा। इससे संबंधित किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकता है। जी, धन्यवाद अमन जी। सो आई थिंक हमारा इस सेशन करने का, क्लब करने का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि हम पुरातत्व की दृष्टि से भी देखें और अपने जैन आगम की दृष्टि से भी देखें, सो दैट हम कोई गलत मैसेज ना भेजें। और अलग अलग समय पर अलग अलग जरूरत लोगों को ही, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग राजाओं ने भी अलग तरह से इनको, इन विषयों को देखा है, समझा है, इसलिए बहुत अलग अलग तरह से इनका इंटरप्रिटेशन हुआ है। manifestation is the right word, so different people have manifested it in different ways. तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है निकल कर। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मन जी, आपने एक बहुत गूढ़ व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में सब श्रोताओं के लिए की। एक प्रश्न है जो हमारे पास आया है वासुकी जी का। इनका प्रश्न है, श्रुत स्कंद के क्या अलग अलग जो उसकी भुजाएं हैं या शाखाएं हैं, उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है? और अगर वो है तो किस आगम में वो विस्तृत रूप से लिखा गया है या अवेलेबल है? अगर आप थोड़ा उसके बारे में बताएं तो वो सभी श्रोताओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ज्यादा देखिए, डिटेल मैंने सबसे शुरू ही आपको थोड़ा कहानी, सा टच कर सकते हैं, थोड़ा सा आगम का नाम बता सकते हैं या किसी भी शास्त्र का नाम बता सकते हैं जिससे हम रेफर कर सकते हैं। समझ गया मैं इनकी बात को। मैंने आपसे शुरू में ही ये बोल दिया कि एक आगम जब लुप्त होने लग गया, ग्रंथों की रचना हुई, जिसे हमने सठ खंडागम ग्रंथ नाम दिया। और इस सठ खंडागम जी आचार्य बीड़ सिंह स्वामी ने, जिसे हमने धवला, जय धवला, महाधवला नाम दिए। और जो श्रुत स्कंद आदि आदि से संबंधित आपका प्रश्न है, भुजाएं आदि जाती हैं, इनका सिर्फ इतना समझिए कि जिनवाणियों, जो जिनवाणी थी सरस, जैसे भगवान ने वाणी बोली, गणधरों ने उसे 12 भागों में विभाजित कर दिया। आचारांग, सूत्र, कृतांग, संवायांग आदि 12 भागों में विभाजित कर दिया। आगे चल के इन्हीं 12 भागों की एक मूर्ति बन गई जिसमें 12 हाथ थे। तो उन्होंने बता दिया कि 12 हाथों की एक मूर्ति है। अब ये नाम आपको कहाँ पे, आप किसी भी, अगर आपको मूल ग्रंथ देखने हैं, षटखंडागम जी देखना है, काशाय पाहुन जी देखना है, मैं जो नाम बोल रहा हूँ ये सब प्रमाणिक ग्रंथ के नाम बोल रहा हूँ, आप जिसमें लिख सकते हैं। षटखंडागम जी देखना है, कषाय पाहुन जी देखना है, धवला आदि 29 ग्रंथ हैं, 16 मुख्य हैं, इनको देखना है।
तो आपको आवेगी किसी मुनि के पास जाने की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ग्रंथों को सामान्य श्रावक को छूने का अधिकार भी नहीं है, इतने ग्रंथ है। तो किसी भी मुनि के पास जाकर आप इनकी बारे में और जानकारी ले सकते हैं, इनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं। दूसरी की बात करो तो आज कई सारे ग्रंथ आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें हम अंगवाह कहते हैं। दो प्रकार के ग्रंथ हैं, तत्वार सूत्र में आया है, अंग प्रविष्ट और अंगवाह। जो द्वादशांग था वो तो सब अंग प्रविष्ट है, लेकिन उसे कुछ भी अपने पास अवेलेबल नहीं है, समय के साथ सब खत्म। में जो भी है वो अंगवाह है। तो इसके नाम तो आप किसी भी कोई भी कर्णानुग का शास्त्र उठा लीजिए, कर्णानुग का ही नहीं, अगर आप सामान्य रूप से भी कोई शास्त्र उठाएंगे उसमें इसका विशेष वर्णन हो तो आपको इसका उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा। Ask a question. जी, किसी और का कोई प्रश्न है तो हम 1 मिनट और ले सकते हैं, कोई प्रश्न अगर लिखना चाहता है तो। Can I? Yes, Hello. yes sir, Ajit Prasad sir. Yes, Yeah. Actually, the talk was really fantastic and really enjoyed each and every moment of your talk, sir. At the end of your talk, you told about one particular point that if we worship Jinavani in the form of a, woman, देवी का रूप में प्रार्थना किया तो देवियों को वो जन्म और मरण है उसमें। पर the point is that, see, for example, the yakshas and yakshis, it is a post. Many people will come and go. For example, Dharanendra Yaksha, it's a post, and आयु कर्म होने के बाद किसी और आत्मा उधर आ जाता है। ऐसे ही सरस्वती को क्यों नहीं? Maybe the same point with Saraswati also. If we are worshipping the Saraswati, I know that Saraswati is not a goddess. I know that because our own poet, great poet great Pampa has told like that. Parama Jinendra Vaniye Saraswati, Perondu Venna Rupumam Darisi Nindudum Alto. Jinendra Vani itself is Saraswati, and no woman like that, no goddesses like that. Okay, I fully agree with all these things. But the last point you raised, that made us to get confused. So I request you to please clarify the things. अजीत जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और जब मैंने बोला था मैं तभी समझ गया था कि एक प्रश्न पे आना चाहिए और आएगा, तभी मैं मानूंगा कि लोगों ने सुना है। Yeah. तो थैंक यू। इसका उत्तर ये है, देखिए अब मैं किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहता, पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आदिनाथ भगवान की देवी चक्रेश्वरी का, मुख्य अक्षणी चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी देवी आज भी पूजी जाती हैं, सिर्फ श्रद्धा रूप में पूजी जाती हैं। वास्तविकता में चक्रेश्वरी देवी तो अब इस संसार में रही नहीं, क्योंकि जितनी आयु व्यंतर देवों की होती है उससे तो कई गुना ज्यादा समय आदिनाथ को बीत गया। दूसरी बात, धरणेन्द्र पद्मावती की भी आपने बात करी, तो अब देखो आपकी बात से आप ही की बात को सिद्ध करूंगा मैं। धरणेन्द्र पद्मावती को आज मान रहे हो, पारसनाथ भगवान का उपसर्ग दूर करने का भाव आया था, उनके समक्ष आए थे, उनके पास आए थे और पूरी कोशिश भी की जितना उनसे बल पड़ा। आज से जब ये 5वां काल खत्म हो जाएगा, 6वें काल में धरणेन्द्र पद्मावती को कौन ना जानेगा जब धर्म ही नहीं रहेगा। Now, why I ask this particular question is that 6वें के बाद जब दोबारा Hambuja Bhattarak ji ne told like that only. Maybe I am getting confused, or he might have given a wrong information about this. He has told clearly that Yakshi post, it's a post. Many Padmavatis has already gone, and many more is going to come. That was
what he चलो, told. तो फिर अब एक बात बताओ, यक्ष यक्षिणी तो इसके पहले भी हुए होंगे हाँ तीर्थंकरों के, तो हाँ 24 तीर्थंकरों के पहले की जो 24 ही थी, yeah, that was he was telling. उनके किसी यक्ष यक्षिणी का नाम बताओ। No, I really don't know, but the Bhattacharya has told me like that. He was telling the same thing in the open sabha में वो बोल रहा था ऐसे ही. It is a post, and many Padmavati and Dharanendra was existed before the Parshvanath. He was telling like that. तो अच्छा That's why सुनो I'm सुनो, asking the particular ये question. ऐसे ही हुआ, अमन जी, अजीत जी, जैसे मैं जैसे थोड़ा सा एक पिता क्षमा चला चाहूंगा। गया। मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा। सो जैसे मैंने पहले ही बोला था, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, अलग तरह से मैनिफेस्टेशंस हुए हैं, चाहे वो देवी हो, चाहे यक्ष हो, चाहे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की परंपरा में बहुत अंतर है, और दिगंबर संप्रदाय के अंदर ही बहुत सारे अंतर हैं। तो वो ये कोर क्वेश्चन है और ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। आई थिंक वो हमारे स्कोप ऑफ सब्जेक्ट से थोड़ा आगे जाता है। वो हम एक अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं कभी फ्यूचर में। बट आई थिंक द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच अजित प्रसाद जी वाज ट्राइंग टू कन्वे इज दैट it has a different meaning and it is taken up differently. So हम दोनों ही मतों का सम्मान करते हैं, क्योंकि मतलब मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं किसी एक को सही और दूसरे को गलत बता सकूं, तो मैं वो ट्राई भी नहीं करूंगा। तो बट हम दोनों सभी मतों का सम्मान करते हैं, और उन्हीं उन्हीं सब चीजों को साथ में लेके चलने के से ही हमें पता लगेगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है, कहाँ पर क्या चीज बदली, क्यों बदली, और उसका क्या डिफरेंस, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ समाज के ऊपर, डिफरेंट लोगों पर, डिफरेंट प्रथाओं पर। कि हमारे उत्तर भारत में, एज अमन जी ने बिल्कुल सही बोला, कि कोई पूजन, कोई प्रतिष्ठा इधर नहीं मिलती है, बट शायद तमिल ग्रंथों में या किसी पुराने कन्नड़ ग्रंथ में कुछ कहीं पर कोई इसका इंस्क्रिप्शन हो, कोई मौजूद हो, वो शायद हमारे नॉलेज में नहीं हो, इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो। पर जैसे भट्टारक जी ने एक बात बताई है, तो हम उस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सकते हैं और उस बात को समझ सकते हैं। बट यस, ये बहुत क्लियर है कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट मीनिंग्स उनके हुए हैं और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से उसको माना है। तो अनेकांतवाद का सम्मान करते हुए हम सभी मतों का सम्मान करते हैं, और सभी से हम आग्रह करते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव वे में हम आगे भी इसको लेके जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को एक बड़े समाज पर और बड़े अलग ग्रुप पर अलग अलग तरह से इसको समझे, देखें, और इसको हम माने फिर उन बातों को। बट आई थिंक आज के लिए हमारा ये सेशन होता है। एक आकाश जी का क्वेश्चन और है। पूछना चाह रहे हैं अजित कुमार बनर्जी जी, सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, अजीत जी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। You see, all these different lokas, the Devi Devatas were there. Their lifespan is given. It cannot be, in my understand, it cannot be a post. The lifespan of Chakreshwari is longer than the Adinath Tirthankars from here. So as long as the Vartaman 24 Tirthankars exist, this post will be existent. When the next Tirthankars come, this post will be gone. This is my understanding. धन्यवाद अजीत जी। Thank you, Gaurav ji, for giving me an opportunity to express my views, and of course, Nitin ji. थैंक यू अजीत जी। एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अमन जी। आकाश जी का क्वेश्चन है, सरस्वती माता देवी की आरती क्यों होती है? अनेक परिवार ये आरती करते हैं जिन पूजा करने के बाद। आरती तो आकाश जी को वही प्रश्न है कि इट इज डिपेंडेंट। आरती तो पंच परमेश्वरी की ही कही गई है, लेकिन क्योंकि वो भी पूजनीय है, इस अपेक्षा सरस्वती जिनवाणी की आरती हम लोग करते हैं, और जिनवाणी की रुक्मिणी आरती करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। ओके, सो अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत ही अलग विषय को एक बहुत गूढ़ तरीके से, गूढ़ विषय को सहजता से आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषयों पर दोनों ही वक्ताओं ने सभी श्रोताओं का और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और अगले अनेक विषयों के लिए हम फिर से आएंगे जैन हेरिटेज सेंटर्स की तरफ से। नितिन जी। सभी को जय जिनेंद्र। अमन जी, आपको इतने ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे से
लगभग 50 मिनट से 1 घंटे से आपने जैसे जैन दर्शन के हिसाब से सरस्वती और जिनवाणी और शुद्ध पंचमी के बारे में छोटे बच्चों को भी आपको बात सुनते सुनते समझ में आएगा कि जैन दर्शन में कैसा है। आप इतना अच्छे तरीके से बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इधर पधारने के लिए हमें जो सहयोग दिया है आकाश जी ने और सुरेश जी ने और सारे जैन समाज वालों को, सभी को हमारा जय जिनेंद्र। और आगे के लिए लाइक एज वी मूव अहेड, आगे के लिए कुछ और हफ्तों में इन एवरी वीक, नहीं तो अल्टरनेटिव वीक्स में, आगे दिनों में ऐसे ही जैन इतिहास और पुरातत्व के बारे में, अलग अलग विषय के बारे में बहुत सारे सीरीज में लेक्चर्स होने वाले हैं। कर्नाटका के बहुत सारे लोग हैं, तमिलनाडु के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सभी के लोग आने के लिए बहुत सारे लोग अग्री किए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड वॉचिंग अवर जैन हेरिटेज सीरीज। सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।